Ji, Assalamu alaikum. Hope so you are doing great. Once again, I'm here with a new session that's brought to you by Shield. And as you know, it's the best consultancy that you can get from the Shield. So I'm waiting for my guest as she is over here. Then we will connect with them together. Faria, are you there? Then please join us in the broadcast. Hello, Safrina. How are you? I'm just waiting for my guest today because we are discussing on various topics. So our today topic is about the smoke and why it happened in Lahore. It's too much all over Pakistan. There are some symptoms regarding smoke. What is smoke? Why it happened? What are the causes behind? And what are the main reasons? We want to know about our experts. So I'm waiting for Dr. Faria. Dr. Faria, if you are here, kindly join our broadcast. Dr. Faria, are you there? Please join our broadcast. आप broadcast पे उस पे join करें, then I will accept. I think she is trying to connect, but yes, she is here. So now we are going to start our session. Yes, Dr. Faria is going to be at, and now I'm going to start my session before she's arrived. Hello, Dr. Faria. How are you? My voice is audible? Yes, it's totally fine now. I'm fine, thank you. How are you, Sana? I'm good. And now we are going to start our session because before that your connection is not working. So that's why we missed that. Yeah. Okay, Dr. Faria, this session is brought to you by Shield, as we are collaborating with them, and they're giving free consultancy as a pediatric experts we have on this platform, and the Shields are also having their own experts. So we are going to start our session with the name of Allah Almighty, and let's start introduce myself. Most of the people know about me. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Me Group, and I'm working here as a panel administrator and moderator. So we want to know more about you. Can you please introduce yourself, Dr. Faria? Yes. Can you please introduce yourself? My voice is audible? Me, and my name is Dr. Faria Ishfaq, and I am working in medical unit DHQ Sirgoda Teaching Hospital, and I have also worked with an NGO, Green Star Social Marketing, for past over like 2 years as a quality insurance manager and like as a master trainer on the family planning services. Okay, Dr. Faria, basically today we are going to discuss about the smoke. Can you please define what the smoke is and why, what are the reasons behind smoke? जो हमारा ये है smoke and fog, सुनने में तो एक जैसा आवाज लगता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप हमारे ऑडियंस को समझा सकती हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है बिल्कुल। स्मोक में और फोक? स्मोक फोग जो है वो हमारे को वेपर्स होते हैं जो ज्यादा जो है जब बनते हैं मौसम की वजह से, वेदर चेंजिंग की वजह से,
तो वो फोग होती है। लेकिन जो कोई हमारे जिस तरह ब्रिक लेन्स होते हैं, उनके जलने से, या कोई हमारे खेतों में से कोई भी चीज जलाने से, जिस तरह चावल की फसल होती है इस मौसम में, तो उनको जलाने से जो स्मोक होता है, जब वो फोग के साथ रिएक्ट करता है, मिलता है, तो वो जो है वो स्मोक कहलाता है। और वो इसी वजह से पॉइजनस होता है, सही। इसी वजह से नोटोरियस टू हेल्थ होता है, क्योंकि उसमें जो है वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैसेस जो है वो मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, स्पेशली बच्चों में या एल्डर एज में। सही। अच्छा, यहाँ सगोदा में तो इतना ज्यादा अभी नहीं है, यहाँ पे स्मोक देखने में आ रहा, बट जहाँ पे ये सिचुएशन है वहां पे ये अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक है ना, वहां पे उनका स्कूल का भी उन्होंने यस। रिस्ट्रिक्शन कर दिया, फिर बाहर बच्चे नहीं जा सकते, एनवायरमेंटल कॉजेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके पीछे मेन कंसर्न क्या है? स्मोक का मेन कॉज आपने बता दिया कि फसलों का जो भी ये है, बर्निंग है, इशू है, तो इससे अब कैसे बचा जाए? आप क्या रिकमेंड करते हो? क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसके लिए? इसमें सबसे पहले तो जो है वो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर हर साल एक चीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली आ रही है हमारे पास इन्वायरमेंट में, तो हम लोग जो है उसमें पहले तो थोड़ी सी पॉलिसीज को थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लेवल पे जो काम करने वाला है। और जो हमारे पर्सनल लेवल पे काम करने वाला है, उसमें यह है कि हम लोगों ने अपने व्हीकल्स जो हैं, जो नॉइज पोल्यूशन, या हमारी जो व्हीकल्स जो हैं जिनके हम लोग सर्विसेज प्रॉपर नहीं करवाते हैं, तो उन चीजों की वजह से जो स्मोक क्रिएट होता है, जो एंड पे जाके जो है वो स्मोक में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है स्मोक में, तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है, मतलब ये एक सोसाइटी लेवल पे भी काम करने वाला है, और गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम चाहिए। दोनों तरफ से काम बनेगा तो फिर हम इसको जो है वो टाइम से पहले इस पे काबू पा सकते हैं, जिस तरह अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। जिस तरह अभी जब स्मोक का सीजन स्टार्ट होने वाला था और उसमें गवर्नमेंट ने जो है इस तरह कोई स्पेशल एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जब स्मोक हो गया और जब लाहौर का जो है उसमें उसका एयर क्वालिटी लेवल जो है वो इतना हाई चला गया, तो अब जो है उसमें आप स्कूल्स ऑफ करें या कुछ भी करें तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं होता, उसमें कोई फायदा उसका नहीं होता। फायदा तब होता है जब आप चीज को उसके आने से पहले आप प्रिवेंट करें, और स्पेशली तब जब आपको पता हो कि ये चीज रिपीटेडली हमारे पास हमारी कंट्री में हमें नॉइज पोल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें ये चीजें फेस करना पड़ रही है टाइम के साथ साथ, तो आप उनको चीजों को पहले से प्रिवेंट करना चाहिए अपने लेवल पे। अच्छा, इसमें जो बच्चों का सबसे ज्यादा आ रहा है, नजला फ्लू है, और इसमें बच्चों की खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि बच्चों को सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए बच्चों के हवाले से? सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आजकल मास्क जो है वो वैसे ही बहुत जरूरी है कोविड की वजह से भी। तो मास्क तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, तो लाइक फर्स्टली आपको मास्क तो लाजमी यूज करना है। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा जो है वो इस बात पे उसका चेस्ट का इशू पहले भी चलता है, या साइनोसाइटिस होता है, उसको सांस की तंगी होती है पहले भी, या सीजन चेंज होने पे उसको सांस का मसला होता है, कोई एलर्जिक एस्थमा होता है उसको, किसी किस्म का ऑलरेडी कोई इशू उसके साथ चल रहा है, तो फिर आप उसको बैलेंस करने के लिए उसको पहले आप नेबुलाइज स्टार्ट करें करना, जो आप उसकी पहले मेन ट्रीटमेंट देते हैं। बेशक आजकल जो है वो नेबुलाइज सही। होना आम खवातीन से लेके जो हाईली क्वालिफाइड खवातीन है, हर बंदे को पता है कि नेबुलाइज करना होता है। नेबुलाइज क्या करना, नेबुलाइज क्या होता है, अगर नेबुलाइज नहीं भी है तो आप स्टीम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके आप ऑल्टरनेटिव में आप उसको बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि मास्क पहनाएं बच्चों को, ठीक है ना, और गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना जाने दें, ट्रैवलिंग ज्यादा ना करें, अपनी अपनी जो पेरेंट्स जो खुद हैं अपनी व्हीकल्स की ट्यूनिंग करके रखें, लाइक ताकि उससे जितना हम खुद में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि हम उसको आगे फर्दर प्रिवेंट होने से बचाएं। और बच्चों में जो है साथ में उनको हम लोग गर्म कपड़े पहनाएं, सीजन चेंज होने के साथ ही उनकी चेस्ट जो है स्पेशली उसको हम वार्म रखें, ठीक है ना। तो इन ये दो चार बेसिक कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ रह के हम बच्चों को इससे काफी हद तक बचा सकते हैं। सही। तो इसमें मसाज कितना इफेक्टिव है, अगर हम बच्चों का मसाज के हवाले से बात करते हैं, या जो आपके जनरल मालिश बच्चों को वैसे भी कर रहे होते हैं, न्यू बॉर्न से लेके जितना भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है टॉडलर्स में, तो वो जो मसाज है वो कितना इफेक्टिव है? कि अगर चेस्ट कंजेशन है, या बच्चे को फ्लू है, या रात को सांस लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है,
तो उससे क्या होगा, मतलब अब सर्दियां भी तो है ना। बिल्कुल नहीं, मसाज, बिल्कुल बिल्कुल, मसाज जो है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयलिंग करना, सर का मसाज करना, पाँव का मसाज करना, इवन आपकी बॉडी का, चेस्ट का मसाज करना, और उसके बाद बच्चे को आप गर्म कपड़े पहना के अगर लिटा दें तो लाइक बच्चा खुद में भी एक बहुत कंफर्टेबल, बड़ा कोजी सा फील करेगा, उसको बड़ा वार्म उसको फील होगा, और वो बड़ी उसकी स्लीप बेटर होगी, उससे उसकी चेस्ट कंजेशन बेटर होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूँ इस चीज में कि मसाजिंग भी बहुत जरूरी है। जो हम लोग कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जो माइनर चीजें हैं, जिनको हम थोड़ा सा इग्नोर करके हम मेडिकली चीजों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मसाजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। और अगर आप इस बारे में क्या कहेंगे, अगर हम कोई मेडिकेशन, बच्चे के मेडिकेशन प्रोसेस पे जाते हैं, अब न्यू बॉर्न है या बच्चे को ये चीज हो गई, तो हम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स भी कह सकते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे को अगर मतलब अर्जेंट देनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रात में अर्जेंट हो गया, इमरजेंसी हो गई, बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिकेशन होगी तो हम वो ले सकते हैं, मेडिसिन। ऐसी कोई इस मेडिसिन है तरह जो नहीं, हम अर्जेंट ले अगर सकते आपका बच्चे की, हैं। नहीं नहीं, आप मेडिसिन जो है, हम सबसे पहली बात है न्यू बॉर्न से लेके एटलीस्ट 2 इयर्स तक कोई भी मेडिसिन अगर आपने देनी होती है तो हम सबसे पहले मना करते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा मेडिसिन, मैं ये भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी मैं मेडिसिन बताऊंगी तो खुदा न खास्ता उस बच्चे के साथ कोई ऑलरेडी कोई और किसी किस्म का इशू होता है तो वो उसका वर्स ना हो जाए। तो उसमें बेसिक जो चीज होती है वो नेबुलाइज करते हैं। स्टीम, अगर आप घर पे स्टीम दे सकते हैं तो स्टीम ठीक दें, हो गया। नहीं तो उसको बच्चे को नेबुलाइज करें और बच्चे को वार्म क्लोथ्स पहनाएं, ठीक है ना। और बच्चे को किसी चीज से स्पेशल एलर्जी होती है, कोई सीजनल एलर्जी है, डस्ट एलर्जी हो रही है, झाड़ू लगाने से एलर्जी हो रही है, किसी भी चीज से उसको एलर्जी है, उस चीज से उसको बचाने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसमें हम लोग बच्चों को ये भी डायरेक्शंस माओ को देते हैं कि अगर आप घर में कोई आपकी मेड काम कर रही है या आप खुद काम कर रहे हैं, तो आप डस्ट को आपने जो है वो गीले कपड़े के साथ साफ करें, ताकि वो उड़े नहीं, ठीक है ना, ताकि बच्चे की नेजल्स जो है वो, नॉस्ट्रल्स और नेजल जो पैसेज है उसका सब कुछ क्लियर रहे, ठीक है ना। तो वो उसमें एयरवे को क्लियर करना होता है ताकि चेस्ट कंजेशन की तरफ ना जाए। आप सिंपल जो तो है इसमें कोई भी आप लोग नॉर्मल क्या समझ सलाइन रहे हो कि लेके, अगर मॉर्निंग। आपके पास नेबुलाइजर है, जी जी। आप कोई भी सलाइन का। नॉर्मल सलाइन सिंपल लेके, अगर आपके पास नेबुलाइजर है तो आप उसमें नॉर्मल सलाइन के साथ, सिंपल नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज करें उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए। और अगर आपके पास नेबुलाइजर नहीं है तो आप सिंपल उसको स्टीम करें। और अगर बच्चा खुद से स्टीम के पास भी नहीं जा रहा तो आप बेशक कमरे में स्टीम कहीं पे रख दें, ठीक है ना। अगर आप स्टीम, अच्छी सी स्टीम बना के आप कमरे में रख दें तो वो भी काफी हद तक इफेक्टिव होती है। और थर्ड चीज है कि अगर आप कोई भी एयर प्यूरिफायर या ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, तो आप ह्यूमिडिफायर रूम में जो है बच्चों के पास, जहाँ पे वो सोते हैं उनके टेबल के पास आप लगा सकते हैं। वो भी काफी हद तक चेस्ट कंजेशन को, जो प्राइमरी जो आप घर पे चीज दे सकते हैं फौरी तौर पे कम करने के लिए, वो नेबुलाइजेशन, स्टीम या ह्यूमिडिफायर होता है। सही। अच्छा, और इसमें स्पेसिफिक कोई डाइट प्लान भी होता है कि बच्चों को हम, डाइट कोई ऐसी स्पेसिफिक होती है क्या, अगर कोई बच्चा इसमें मतलब जिसको प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग इशू आ रहा है या फिर हाँ फ्लू नहीं, है स्मोक अगर की वजह अगर से। अगर बिल्कुल, अगर उसको ब्रीदिंग इशू है तो दैट्स मीन कि उसको कोई ना कोई एलर्जी है किसी चीज से। तो हम उन एलर्जेंस को उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्राइवर है, कोई घर में अपना ही कोई पेरेंट में से कोई एक स्मोकिंग करता है, कोई साथ में रहने वाले आपके रिलेटिव्स में से कोई स्मोकिंग करते हैं, आप उससे उसको थोड़ा सा दूर रखें। क्योंकि ये सब एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस ही आपकी चेस्ट कंजेशन को जो है वो इनहेंस करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो है उनसे, उन रिलेटिव्स को दूर रख सकते हैं, आप उन बच्चों को डस्ट से दूर रख सकते हैं, पोलन से दूर रख सकते हैं, उनको मास्क पहना सकते हैं। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट का कोई इशू नहीं होता कि, फॉर एग्जांपल, जिस तरह लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं जी हम बनाना नहीं खिलाएंगे क्योंकि इससे जो है ना वो, उसको जो है वो रेशा ज्यादा होगा और उसकी चेस्ट ज्यादा खराब होगी, तो हम केला नहीं खिलाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको मतलब खाने पीने में किसी किस्म का कोई परहेज नहीं होता अगर आपको एलर्जेंस के साथ इशू होता है। आपने सिर्फ उन एलर्जन से दूर रहना होता है जो आपको चेस्ट कंजेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, सिंपल। सही हो गया। अच्छा जी, इसमें एक और बात आ जाती है जिस इसमें तरह अगर की आपने आजकल ज्यादा, वैक्सीनेशन हो रही अगर है, अगर आप, वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव। जी जी। हाँ जी, ऑब्वियसली आप जो बता रही वैक्सीनेशन, हैं पहले वो बता दें। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो,
ओके। उसमें ये हो सकता है ना कि अगर आपने कुछ खाने पीने में बच्चे को कुछ देना है तो आप वार्म चीजें दे सकते हैं। जैसे उसमें आप हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, हम्म। रिकमेंड किया जाता है, टर्मरिक मिल्क आप उसमें उसको दे सकते हैं। तो आप कोई भी वार्म ऐसी चीज जो कोजी हो, जो बच्चे को इनहेल बच्चा पसंद भी करता हो, यखनी दे सकते हैं उसको आप। उसको कोई भी सूप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीजें देने से जो है वो बेटर बच्चा खुद में फील करता है। सही। अच्छा, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है इस चीज में, बिकॉज अब तो ये है कि पहले एक कोर्स बच्चों को हम बचपन में कंप्लीट करवा देते हैं, और जो आपका स्टार्ट में होता है 1 से 2 साल की उम्र में, एक तो वो पूरा चार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब जो ये रुबेला है और एक सेकंड जो मीजल्स का वो आई थिंक ड्रॉप्स है कि पता नहीं इंजेक्शन जो भी है वो लग रहा है। तो ये चीज कितनी इफेक्टिव है कि अगर बच्चा सफर कर रहा है फ्लू से भी और उसको थ्रोट इन्फेक्शन भी है, तो उसमें क्या ये इफेक्टिव है? क्या हम ये लगा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं ड्यूरिंग दिस कंडीशन में बच्चों को? अगर आपके बच्चे को टेम्परेचर नहीं है तो आप जो है वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए किसी किस्म की कोई प्रिकॉशन, कुछ भी उसके लिए कोई उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इन केस अगर आपके बच्चे को किसी और वजह से फीवर हो, 100+ पे जा रहा है, तो उसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए कोई भी आपकी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और MNR जो आप बता रही हैं वो बेहतर है, क्योंकि अगर जिनकी उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि जिन्होंने अब वैक्सीनेशन कार्ड जिनके कंप्लीट नहीं हुए हुए, उन बच्चों के लिए ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन कार्ड में कंप्लीट किया हुआ है और अगर वो बूस्टर डोज के तौर पे ले रहे होते हैं, तब भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मीजल्स जो है वो सही। बिल्कुल एक डिफरेंट चीज आ जाती है स्मोक से हटके। तो वो फिर, और रुबेला। तो लेकिन ये जो अगर आप कहते हैं जो इन्फ्लुएंजा के जो शॉट्स लगते हैं, फ्लू के लगते हैं शॉट्स, ठीक है ना, उसमें भी काफी हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंजा के इतने सारे वेरिएंट हैं उस वायरस के, कि अगर हमें हमारी मेडिकल साइंस में है कि अगर आपको एक दफा जिस वायरस के वेरिएंट से आपको एक दफा फ्लू हुआ होता है, आपको शायद लाइफ टाइम में दोबारा उस वेरिएंट से फ्लू नहीं होता। लाइक इतने वेरिएंट हैं इसके। तो आप जो है ना, इन्फ्लुएंजा की शॉट से आप थोड़ा सा इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाती है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो एक डिजीज है जो आपको, अगर आपको हो जाता है तो सेल्फ आपको इम्यूनिटी दे के फिर नेक्स्ट पे आपको जाते हैं। सही। मतलब कि आप जो अब ये वाली डोज ले रहे हैं ये एक बूस्टर डोज है बच्चे के लिए, या कोई भी उसमें अगर आप लेते हो रुबेला में बच्चों को करवाते हो तो ये जो है, जी बिल्कुल। ये आप ये कहना चाह रहे जी जी, ये उनके हैं? लिए है, स्पेशली जिनके वैक्सीनेशन कार्ड कंप्लीट नहीं है। और अगर जिनके कंप्लीट हैं हम्म। भी, तो उनके लिए एज ए बूस्टर डोज है। सही, क्योंकि मेरे बेटे को तो ऑलरेडी कंप्लीट थे, और वो सारा मतलब उनका पूरा जितना कोर्स था हमने एक्स्ट्रा बल्कि 2-3 लगवा दिए जिस तरह डॉक्टर ने कहा। तो वो ये है कि अब फिर ये जब लगा तो मैं तो आई एम वेरी कंसर्निंग अबाउट दिस के मतलब एक्स्ट्रा चीज लग रही है ना कि आपने एक दफा दी हुई है तो फिर तो उन्होंने कहा ये मस्ट है, चाहे आप बच्चा किसी भी एज ग्रुप में है आपका ये मस्ट है कि मस्त। आपने ये करवानी है, मतलब आजकल के सिनेरियो के मुताबिक। सही हो बिल्कुल। गया। अच्छा, इसमें मदर की जो अब ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट मदर्स के बारे में, कि उसमें कितने चांसेस होते हैं कि जिस तरह आजकल ये मौसम चल रहा है, स्मोक का चल रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा ये मतलब एनवायरनमेंट को इसने खराब कर दिया, इसमें प्रेग्नेंट जो मॉम्स हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी हम्म। मेजरमेंट होने चाहिए? वो किस तरह से एहतियात करें इस चीज के ऊपर? देखिए, स्मोक जो है वो एक तरह का सोसाइटी लेवल पे एक ऐसी चीज चलती है जो रिपीटेडली हर हम्म। साल आती है। तो उसके साथ सब इफेक्ट होते हैं, जी। बच्चे भी, बड़े भी, प्रेग्नेंट लेडीज भी, इवन अडल्ट्स भी जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है ना। तो वो सब उसके जी। साथ इक्वली इफेक्ट हो रहे होते हैं। जिसको जिस जिस तरह इम्यूनिटी उनका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको ऑब्वियस सी बात है, उसको काफी सारा जो है अपने लिए काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है उसको, और अपने लिए काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो वो जरा ज्यादा इम्यून हो जाती हैं कि वो ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन को कैरी कर लें, ठीक है ना। लेकिन उस इन्फेक्शन के कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं होता कि वो आगे खुदा न खास्ता उसके बच्चे तक जा सकता है। वो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की हद तक रहता है। लेकिन वो उसको ही इतना इरिटेट कर देता है, अगर आपको जुकाम होगा, गला खराब होगा, या खराश होगी, सोर थ्रोट होगा आपका, तो वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर देता है कि आप खुद से ही बेचैन हो जाते हैं, थकावट ज्यादा होती है आपको, आपसे कोई काम नहीं होता। और स्पेशली अगर आप लास्ट ट्रिमेस्टर में हो, तो वो फिर आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है उस चीज को। वर्सन भी हो सकती है वो।
तो हमें उस चीज को बचाना होता है प्रेग्नेंट लेडीज में कि वो वर्स होके किसी निमोनिया की शक्ल ना ले लें, ठीक है ना। तो हमने काफी ज्यादा चीजों को प्रिवेंट करना होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज में और बच्चों में, कि अगर ये ज्यादा हद तक ज्यादा चली सही जाएंगी, ज्यादा गला खराब रहेगा, ज्यादा उसको रेशा बनेगा या जुकाम रहेगा, फ्लू होगा, तो वो फिर निमोनिया की शक्ल में भी जा सकता है। सही। तो उसका असर तो फिर बच्चे पे भी होगा ना, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, या नहीं हो सकते नहीं, निमोनिया बच्चे के ऊपर? निमोनिया जो है वो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की, बट नहीं, वो सिर्फ माँ के लिए होगा। वो ऐसा बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर माँ को निमोनिया होगा तो वो फिर ये होगा कि आगे इन्फेक्शंस होते हैं। बच्चा अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में है तो उसके प्री टर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उसमें काफी फिर आपको जो है ना, क्योंकि आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स पे आ जाते हैं, तो उसके आगे फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स काफी चलते हैं। लाइक लिटरली अगर माँ को निमोनिया होने सही। की वजह से बच्चे को ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन ये कि उसकी वजह से जो मेडिकेशन आप लेते हैं उसकी वजह से कुछ आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ उसके सही। साथ मिल के आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन उसके साथ मिला के हो सकती है। सही। अच्छा लेकिन डॉक्टर ऑब्वियस सी फारिया, बात है, आप स्मोक जो वैसे है क्या वो होता इतना है? खतरनाक है जी जी, स्मोक का क्या आप बता रहे हो? हाँ, कि इतना खतरनाक जी है जी। जिसने हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स तक इतना ज्यादा 300 प्लस पे चला गया है। तो वो फिर उसके लिए सबको ही ज्यादा सही। केयर करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घरों से कम निकलना चाहिए, अपने व्हीकल्स को ट्यून करना चाहिए, अपने एलर्जेंस जो है जिससे आपको एलर्जी ज्यादा फील हो रही है उसको दूर रखना चाहिए, और डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे पहले जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, जिसमें आप स्टीम और कोजी ड्रिंक्स ले सकते हैं, वार्म ड्रिंक्स ले सकते हैं। इसकी तरफ जाके आप जरा अपने को बेहतर पहले करें, उसके बाद मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। सही। अच्छा, आप आज के सेशन के हवाले से आपका एडवाइस क्या होगा सब लोगों के लिए, जो हमारी जनरल पब्लिक आज सुन रही है, इसके आप क्या एडवाइस करोगे? मेरा तो ये है कि यहाँ पे सबको अपना जो है वो एज ए सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, आपको अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करना चाहिए, अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी एक रोल प्ले करना चाहिए, एक सोसाइटी लेवल पे रोल प्ले करना चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको एज ए गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम करना चाहिए। उसमें यह है कि अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं तो आप पहले खुद के अपनी हेल्थ के बारे में देखें कि आपको तो कोई इस तरह की कोई एलर्जी नहीं है, या आप खुद में ठीक है, क्योंकि आप ठीक होंगे तो आप सोसाइटी, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी सोसाइटी, अपनी जॉब की जगह पे, मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट आप ठीक करेंगे। पहले अपनी अपनी केयर करें, पहले अपने बारे में देखें कि आपको किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपके साथ कोई इशू हो रहा है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें, अपने बच्चों को थोड़ा सा करें, साथ में जो है अपने जो आपके करने के काम है, अपनी एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, अपनी नॉइज पोल्यूशन को दूर करने के लिए, उसमें यह है कि हम जो गैर जरूरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो जलाने के लिए या फेंकते हैं, या कुछ भी अपना गार्बेज बाहर फेंकते हैं, उसको देखें कि हमारा जो है वो रिसाइकल्ड होने वाला है नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अभी सोचना शुरू करेंगे तो शायद हमारी आने वाली नस्लों को जो है उसका फायदा रहेगा। लेकिन असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीजों की तरफ शायद इतना डीपली जाते नहीं, हमारे लिए वो एक सब नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद किस तरह की ग्लोबल वार्मिंग जो हम अभी फेस कर रहे हैं उसके बाद किस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो उस पे आप जब रहे तो आपको अपना छोटा छोटा रोल जो है करके आप एक अच्छी एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं। पहले खुद से शुरुआत करें, फिर अपने घर से करें, अपनी सही। सोसाइटी से करें, अपनी जॉब की जगह से करें, देन आप वहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम करें। बिल्कुल सही। Dr. Faria, thank you so much for your today's session and your precious time. And inshallah, we will join together again. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed. Yeah, thank you. And I am really honored to be on the board. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.